So which I think all the couples will be waiting for. After that we'll have lunch, and then we have some games, 2 or 3 games. Then we'll have in the end karaoke and tea and then aarti, and then we'll disperse. So the program will continue until 4:30 and till 5 o'clock we'll finish. Yeah, we have the talent show after lunch in which the kids will be performing different things like dance and other things. So whoever wants to get ready for the fancy dress, they can get ready now. The next speaker is Aditya Goyal, and he'll be speaking on Bhartendu Harishchandra. Good afternoon, everyone. Today I am going to be talking about Bhartendu Harishchandra. Bhartendu Harishchandra is known as the father of modern Indian literature. He is considered one of the greatest Hindi writers of modern India. A recognized poet, he was also a trendsetter in Hindi prose writing. As an author of several dramas, life sketches, and travel accounts, Bhartendu Harishchandra represents the agonies of the people, country's poverty, dependency, inhuman exploitation, the unrest of the middle class, and the urge for the progress of the country. Born in Banaras, Bhartendu Harishchandra's father, Gopal Chandra, was a poet. He wrote poems under the pseudonym Giridhar Das. Bhartendu's parents died when he was still young, but they seem to have had an influence on him. Bhartendu devoted his life to the development of Hindi literature. In recognition of his services as a writer, patron, and modernizer, the title of Bhartendu was conferred on him at a public meeting of scholars at Kashi in 1880. Bhartendu Harishchandra was multifaceted. He made major contributions in the field of journalism, drama, and poetry. He edited the magazines Kavi Vachan Sudha, Harishchandra Patrika, Harishchandra Magazine, and Balbodhini. He was a member of the Chaudhary family of Varanasi, belonging to the Agrawal community, and his home there is still in use. His ancestors were landlords in Bengal. He had one daughter. He wrote the widely mentioned history of the Agrawal community. The Ministry of Information and Broadcasting of India gives Bhartendu Harishchandra Awards since 1983 to promote original writings in Hindi mass communication. Some of his major works were in drama. Bhartendu Harishchandra entered the theatre activity as an actor and became a director, manager, and playwright. He used the theatre as a tool to aware Indian society. His major plays are Vadiki Himsa, Kisan and Bhavati in 1873, Bharat Durdasha in 1875, Satya Harishchandra in 1876, Neel Devi in 1881, the political Andher Melody, that is City of Darkness in 1881, one of the most prominent plays of modern Hindi drama. In poetry, he has had many works: Bhagat Sarvagya, Prem Malika in 1871, Prem Madhuri in 1875, Prem Tara in 1877, Holi in 1879, Madhu Mukul in 1881, Rag Samra in 1880, Vinya Prem Pachasa in 1881, Folo Ka Guchha in 1882, Chandravali in 1876, and Krishna Chalitra in 1883. His essay collection is also known as Sahibul Harishchandra or Bhartendu Granthalaya, and it was published in 1885. So, next I'm going to talk about some of his couplets. The following 2 rhyming couplets are taken from his famous poem Mathribhasha Kevrati, for the sake of mother tongue or towards mother tongue. The poem has 10 couplets in total. The poet asserts the importance of using mother tongue as a medium of expression, conversational and education. निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं उसूल विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार सब देशन ले से कर्म भाषा माही प्रचार, which means progress is made in one's own language as it is the foundation of all progress. Without the knowledge of the mother tongue, there is no cure for the pain of heart.
Many arts and education infinite, knowledge of various kinds should be taken from all countries but propagated in our mother tongue. We can find out more information about him in the book Bharatendra Harishchandra, Makers of Indian Literature by Anand Gopal. Thank you. Thank you, Aditya. I would like to request Rohan to shed some light on the Hindi club that we are going to start, because the topic has come up. So he'll tell something about the Hindi club which they are going to start from next week. सबसे पहले सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और अंतराष्ट्रीय जी को प्रणाम। आके प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में मदद करने के लिए हर प्रकार से। हिंदी सभा पे आने के पहले कुछ मैं ये अभी जैसे भारतेंद्र हरीशचंद्र के बारे में बात करी, उन्होंने काफ़ी हिंदी के ऊपर किताबें लिखी और हिंदी की उत्पत्ति के ऊपर लिखा। साथ ही साथ उन्होंने अग्रवालों की उत्पत्ति करके भी एक विषय पे काफ़ी बड़ी पुस्तक लिखी और अग्रवालों के इतिहास में सबसे पहले जो लेखन हुआ था वो भारतेंद्र हरीशचंद्र के द्वारा ही हुआ था। इसके अलावा काफ़ी जो हमारे वैश्य नेता हैं, अग्रवाल नेता और माहेश्वरी समाज से भी, उन्होंने हिंदी को मातृभाषा बनाने के लिए उनका काफ़ी योगदान रहा है और उसी परंपरा को कायम करते हुए हम लोग भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि टोक्यो में या जापान में जितना भी हो सके हिंदी के लिए कुछ कर सकें। हेलो एवरीबॉडी, आज अग्रसेन जयंती के शुभ अवसर पर मैं विश्व विख्यात व्यक्ति श्री सुनील भारती मित्तल के बारे में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। सुनील भारती मित्तल विश्व प्रसिद्ध अरबपति हैं जिन्होंने भारती एंटरप्राइजेस की स्थापना की। यह आज भारत की सबसे बड़ी मोबाइल GSM सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने अपने व्यापार को तो ऊंचाइयों पर पहुंचाया ही, इसके साथ वो मानवता की भलाई के लिए भी लगातार काम करते रहे। हाल में ही इन्होंने भारत में 200 स्कूलों की स्थापना की। 2007 में इन्हें पद्म भूषण के इनाम से भी भूषित किया गया। Thank you, Abhay. अभी हिंदी की लेके आए। These are young speaker today. Good morning, everyone. Today I'm going to speak about Lakshmi Mittal. Among the list of prominent Agarwal, Lakshmi Mittal's name is well known. He was born in 1950 and is a native and a steel tycoon. His company, Mittal Steel, is the largest steel maker in the world. As of 2010, Mr. Mittal is the richest man in Europe and the 5th richest man in the world. Mr. Mittal was named as Steelmaker of the Year in 1996 by New Steel. He was awarded Fortune Magazine's European Businessman of the Year 2004. In 2007, he was named one of the 100 most influential people by now. You are definitely made by India and Agarwal's proud. Thank you. तो ये 72 रानियां और रानी चंद्रावती शिवजी की आराधना में लग गए उस जंगल में जाकर। ठीक उसी समय कैलाश पर्वत पर शिवजी और पार्वती यहाँ पर तस्वीर उपलब्ध है, वहाँ पर विराजमान थे। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि प्रिय मुझे धरती लोक में जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ के ऋषि मुनि जो हैं वो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ जब तक पूरा नहीं हो रहा है तब तक कि जब वहाँ पर उनको दर्शन साक्षात ना दे दूँ। तो पार्वती जी ने कहा नहीं आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी जाऊँगी आपके साथ। तो शिवजी बोले कि देखो ये धरती लोक में बहुत कष्ट है और आप वहाँ जाओगी तो बहुत व्यथित हो जाओगी, तो आप यहीं रहो, मैं यूँ गया और यूँ आया। पार्वती जी ने कहा मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके साथ ही जाऊँगी। शिवजी बोले तुम्हें साथ में ले जाना मेरे लिए सिरदर्द हो जाएगा, आप मेरी बात को मानो, मत जाओ वहाँ पे। नहीं मुझे जाना है। हम सबको ही मानना पड़ता है, शिवजी थे उनको ही मानना ही पड़ा, तो चलो भाई साथ ही चलो, कोई बात नहीं है। तो जब वो साथ आए और जब
अपने कैलाश पर्वत से नीचे उतर रहे थे तो उतरे ही थे कि माता पार्वती ने देखा कि ये 72 पत्नियां जो सैनिकों की थी और महारानी चंद्रावती काफ़ी विलाप कर रहे हैं, करुणा में हैं और शिव जी का ध्यान लगाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज शिव क्या हुआ, ये इस तरह से विलाप क्यों कर रहे हैं? तो शिव जी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई थी और उनको उनके किए का दंड मिला है उन 72 सैनिकों को, राजा को, इसलिए विलाप कर रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती और ये इतने समय से आपकी तपस्या कर रहे हैं, अपने पतियों के बगैर हैं, मैं आपको इसी वक्त जो है जीवन दान देना पड़ेगा। शिव जी बोले मैं इसलिए आपको नहीं ला रहा था, पहले ही मना किया था, वो आप ले आए कि परेशानी में डाल रहे हो, पर भाई मानना तो पड़ता ही है, आखिरकार हाईकमान की बात थी। तो शिव जी ने उन 72 सैनिकों को और राजा चंद्रसेन को उन्हें जीवन दान दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा आज से आज अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ दोगे, अहिंसा मार्ग का पालन करोगे, आज से मारकाट हिंसा पूरी तरह से बंद हो जाएगी और आज से आप सभी वैश्य हो जाओगे। तो खासकर ये जो 72 जो सैनिक थे उनको बोला कि आप जो महेश्वरियों की 72 खाक या 72 वंशज कहलाओगे और राजा चंद्रसेन को यह कहा कि आप इनसे मिलने वाले डोनेशन से अपना घर चलाओगे और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका वंशगत भी हमेशा साथ में रखोगे, मेंटेन करोगे। तो पर जब ये राजाओं को पुनः जीवन दान मिल गया या सैनिकों को, तो उन्हें अपनी पत्नियों को स्वीकार करने में थोड़ी सी अड़चन हो रही थी क्योंकि पत्नियां अभी भी क्षत्रिय थी। तो माता पार्वती ने इस अड़चन को भांप लिया। उन्होंने कहा कि मैं बीच में खड़ी हूँ, आप सभी लोग मेरे इर्द गिर्द 4 फेरे लगाओ, 4 परिक्रमा लगाओ। उन्होंने जैसे ही 4 परिक्रमा लगाई, ऑटोमेटिकली जो भी सैनिकों की पत्नी थी वो अपने आप ही उनके जोड़े बन गए। तो शायद इसी परंपरा को निर्वाह करते हुए आज भी माहेश्वरियों में जब शादी होती है तो 4 के शादी के फेरे होते हैं वो मामा फेरे कहलाते हैं, वो मामा जी के साथ होते हैं और बाकी 3 फेरे जो है वो अलग से होते हैं। इस तरह से 7 फेरे अभी भी दिए जाते हैं। मुझे भी ये बात नहीं पता थी, पर जब इस तरह के पसंद आए तो पता चला। और उसके बाद से ही क्योंकि ये सब कार्य जो है वो ज्येष्ठ मास की नवमी तिथि को हुआ था, जिसे कि हम लोग महेश नवमी के नाम से अभी तक मनाते आ रहे हैं। और महेश नवमी पर भारत में जहाँ जहाँ भी महेश्वरी समाज काफ़ी संगठित है वहाँ पर महेश नवमी का विशाल आयोजन किया जाता है। कल ही पापा जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि भोपाल में शुरुआत में माहेश्वरी और अग्रवाल दोनों के ही घर बहुत कम थे, क्योंकि भोपाल मुख्य तौर पे जो है मुगलों की सल्तनत की, नवाबों की नगरी थी। तो जब अग्रवाल और माहेश्वरी वहाँ पे करीब 60, 70, 80 साल पहले पहुँचे और अपना व्यापार उन्होंने चालू किया, तो संगठित रूप से उन्होंने वहाँ पर एक भवन के लिए जमीन खरीदी और एक भवन तैयार किया जहाँ पर कि समाज के आयोजन हो सकें, शादी ब्याह आदि के प्रोग्राम हो सकें। और वो वहाँ पर अभी भी माहेश्वरी भवन उस जगह पर स्थित है और वहाँ पे सम्मिलित रूप से प्रोग्राम आयोजित होते हैं। हालांकि उसके बाद अग्रसेन बंधुओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई भोपाल में, उन्होंने अपने और भी भवन बना लिए, माहेश्वरियों के भी और भी भवन बने। पर आज जो हम जापान में करने जा रहे हैं इसकी मिसाल भोपाल में पिछले 70-80 साल से उपस्थित है। और इसके साथ ही मैं अपनी कथा यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा ये जो संयुक्त तत्वावधान जो आज से चालू हुआ है ये आगे भी चलता रहेगा।